Welcome to today's lecture. Yesterday we were deriving the expression for the position vector of center of mass of two particle system. We reached at this expression that position vector of center of mass RCM, this is equal to m times R1 plus m times R2 divided by m1 plus m2. In the previous lecture I told you that this is called as the weighted average of position vectors of two particles forming the, this is the weighted average of position vectors of the two particles. So position vector of center of mass is simply equal to the weighted average of the position vectors of the two particles forming the system. Now let us have some more discussion about this center of mass of two particle system. Number one, if we cross multiply, we get m1 plus m2 into RCM is equal to m1 R1 plus m2 R2. What I did here, I cross multiplied simply. This is m1 plus m2 into RCM is equal to m1 R1 plus m2 R2. m1 plus m2, this is the total mass of the system, and RCM, this is the position vector of center of mass. So this equation says that the product of total mass of system, and the position vector of center of mass is equal to the sum of product of masses of two particles and their respective position vectors. Product of total mass of system and the position vector of center of mass is equal to sum of products of masses of the two particles forming the system and their respective position vectors. Now, second discussion. Suppose this point C, it lies at the origin. That means if the center of mass of two particle system lies at the origin, ठीक है ना? If the center of mass of two particle system lies at the origin, if the center of mass of two particle system, it lies at the origin, when this point C lies at the origin, what happens? In that case, this RCM is equal to 0. Therefore, RCM means position vector of center of mass, this will be equal to 0. जब point C यानी position of center of mass origin पे lie करेगा, उस वक्त जो आपका RCM होगा वो होगा 0. Therefore, from equation A, we have 0 is equal to m1 R1 plus m2 R2 divided by m1 plus m2. Again we will cross multiply. We get m1 R1 plus m2 R2 is equal to 0. This implies we will get m2 R2 is equal to minus times m1 R1. अब यहाँ R2 निकालो. This implies R2 is equal to minus times m1 divided by m2. m2 इसके नीचे जाएगा. m1 divided by m2 into R1. बेटा अगर आपका पोजीशन वेक्टर C जो है, if it lies at the origin, ये origin है तो आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो यही लाई करता है. जब सेंटर ऑफ मास origin पे जाएगा तो आपका RCM जो होगा that will be equal to 0. जब RCM equal to 0 होगा, then from equation number A हमें क्या निकलेगा? m1 R1 plus m2 R2 is equal to 0. This implies हमें क्या निकलेगा? m2 R2 is equal to minus times m1 R1 divide m1 R1. तो R2 निकालो. This implies R2 is equal to minus m1 divided by m2 into R1. It means that if R1 is negative, अगर यहाँ में R1 नेगेटिव होगा तो मेरा R2 क्या होगा? पॉजिटिव. This implies if R1 is negative, then R2 will be positive.
If R1 is negative as per this equation, then R2 will be positive. If R1 is negative, it means that mass M1, that means particle of mass M1 lies on the left side of the origin, while as R2, which is positive, it lies on the right side of the origin. It lies on the right side of origin. If R1 is negative, it means that what happens? The particle of mass M1, it lies to the left of the origin because R1 is negative. And since R2 is positive, it means that the particle of mass M2 will lie towards the right of the origin. Towards the right of the origin. It means that in this case, the center of mass of two particle system will lie on the line joining the two particles. It means that center of mass of two particle system, it lies along the line joining the two particles. जब center of mass जो होता है, when it lies at the origin, in that case the center of mass will always lie along the line joining the centers of the two particles. एक और चीज यहां पर, if M1 is greater than M2, अगर M1 जो होगा mass of particle 1, that means M1 is greater than M2, mass of particle 2, उस सूरत में क्या बनेगा ये? This implies M1 by M2 is greater than 1. यानी पार्टिकल नंबर 1 जो है वो हेवियर पार्टिकल है और पार्टिकल 2 जो है वो लाइटर पार्टिकल है. हम देखेंगे जब एक पार्टिकल हेवियर होगा, दूसरा पार्टिकल लाइटर होगा, उस वक्त सेंटर ऑफ मास किस तरफ ज्यादा होगा, वेदर इट विल बी टुवर्ड्स द हेवियर पार्टिकल और इट विल बी टुवर्ड्स द लाइटर पार्टिकल. देखो इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर A, फ्रॉम इक्वेशन B रखेंगे इसको, फ्रॉम B आपको है ये इस तरह, R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू माइनस M1 डिवाइडेड बाय M2. चूंकि M1 डिवाइडेड बाय M2 जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर R2 डिवाइडेड बाय R1 विल बी ग्रेटर देन 1. इसका मतलब जो है क्या है, वो है R2 इज ग्रेटर देन R1, और मैं ऐसे लिखूंगा R1 इज लेस देन R2. यहां देखो, इफ M1 इज ग्रेटर देन M2, यानी पार्टिकल जो 1 है वो हेवियर पार्टिकल है, पार्टिकल 2 जो है वो लाइटर पार्टिकल है, तब M1 by M2 होगा ग्रेटर देन 1. Therefore, as per this equation B, R2 by R1 is greater than 1, or R2 is greater than R1, or R1 is less than R2. इसका मतलब है ये R1 कम है, ये R2 ज्यादा है. इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ मास होगा उस वक्त वो होगा क्लोजर टू द हेवियर पार्टिकल. In such case, the center of mass will be closer to heavier particle. Center of mass जो होगा will be closer to heavier particle. In that case, center of mass will be closer to the heavier particle. Now, this was the discussion number 2. Let us move ahead. Discussion number 3. जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो आपको पता है दैट इज M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. सपोज यहां पर मुझे ऐसे है, दिस इज द पार्टिकल which is located at point A having position vector R1. Suppose इसका मास जो है instead of M1 इसका मास है M. ये है पार्टिकल नंबर 2, दिस इज सिचुएटेड एट पॉइंट B, इसका भी मास क्या है M, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है R2. ये है सेंटर ऑफ मास. इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो है RCM. अब मैंने क्या लिया, मैंने लिए दो पार्टिकल्स जिनका मास क्या है सेम. If M1 is equal to M2 is equal to M. मैंने दो पार्टिकल्स दिए, एक का मास था M1, दूसरे का M2 था, लेकिन अब मैंने लिए दोनों पार्टिकल्स जिनका मास जो है वो है सेम, यानी एक का भी M है, दूसरे का भी M है.
मैं देखूंगा इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा. If we have two particles of same mass, let us see where the center of mass of these particles will be located. Now, therefore, from equation about this equation A, therefore from equation A we get RCM is equal to MR1 plus MR2 divided by M plus M. क्योंकि M1 भी बराबर है M को, M2 भी बराबर है M को, तो हमें निकलेगा RCM is equal to, M को कॉमन लेंगे, दिस इज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2M. M और M कैंसिल हो गया, तो आपका जो RCM है वो निकला R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2. तो आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकला उस वक्त R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2. ये देखो, सपोज ये है सेंटर ऑफ मास, सपोज ये है R1, सपोज ये है R2, सपोज R1 है 6, R2 है 4. ठीक है, तो RCM क्या निकला मुझे, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2. वो कितना होगा, वो होगा 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, वो होगा 10. इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ मास, अगर ये 10, अगर ये लाइन सेगमेंट कुल है 10 सेंटीमीटर्स, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट विल बी लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर्स. दैट मींस सेंटर ऑफ मास विल बी एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, एट द मिडवे ऑफ द लाइन joining the centers of two particles. So when we have two particles of same mass, in that case the position vector of the center of mass will be exactly located midway on the line joining the two particles. This completes the discussion about center of mass. Now let us move ahead. Center of mass for a two particle system. Now let us write down center of mass for n particle system. अब हम लिखेंगे center of mass, position vector of center of mass for n particle system. यानी जब हमारा एक सिस्टम होगा उसमें n particles होंगे. This is the position vector of center of mass of two particle system. Now let us write down the expression for position vector of center of mass of n particle system. जरा वो कैसे होगा, वो होगा RCM is equal to, शाबाश, M1R1 plus M2R2 plus M3R3 plus dash 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 plus MNRN divided by, शाबाश, M1 plus M2 plus M3 plus dash 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 MN. This is the position vector for a system consisting of n particles. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RCM is equal to, इस M1R1, M2R2, M3R3, इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्लस के बदले हम लिखेंगे समेशन, M1R1, M2R2, M3R3, इसके बदले हम लिखेंगे MIRI, और I का वैल्यू जो है that is from 1 to n. तो मैं लिखूंगा I runs from 1 to n. तो मैंने ऐसे लिखा M1R1 plus M2R2, इसको मैंने समेशन के फॉर्म में लिखा. मैंने लिखा RCM is equal to summation of I is equal to 1 to n MIRI divided by, इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा summation of MI, लेकिन I का वैल्यू जो है that runs from 1 to n. So this was the position vector of center of mass of n particle system. This was the position vector of center of mass of n particle system. अब मैं आगे जाऊंगा, आगे मैं क्या लिखूंगा, which else I will write down the expression for the coordinates of center of mass, coordinates of center of mass of two particle system, coordinates of center of mass of two particle system. पहले मैं टू पार्टिकल के लिए लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको एक्सटेंड करूंगा फॉर n पार्टिकल सिस्टम. कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. देखो मैं कैसे इसको लिखूंगा.
ये मुझे 2 डायमेंशनल सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. सपोज यहां पर मेरा एक पॉइंट है, पॉइंट P. सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y, यानी इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो है x और y कोऑर्डिनेट जो है वो है y. सपोज इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है r. तो आपको पता है, आपने वेक्टर्स में किया है, दिस r इज इक्वल टू xi प्लस yj. r किसके बराबर है? xi प्लस yj. यानी अगर जो पॉइंट P है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y है, तो r इसका पोजीशन वेक्टर है, तो r होगा बराबर xi प्लस yj. वेल x जो है वो r का x कंपोनेंट है, ऐसे वो r का x कंपोनेंट है यहां से, तो y जो है वो r का क्या है? y कंपोनेंट. और i जो है दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, और j जो है दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस. इंस्टेड ऑफ xy, अगर यहां पॉइंट्स होंगे x1 y1, तब r किसके बराबर बनेगा? r इज इक्वल टू x1 i प्लस y1 j. I will use this for writing down the the coordinates of center of mass of a 2 particle system. Suppose बेटा मेरा यहां एक 2 particle system है which consists of 2 particles. यहां पर मेरा एक पार्टिकल है, इसका मास है m1. यहां पर मेरा दूसरा पार्टिकल है, उसका मास है m2. जो पहला पार्टिकल है इसको मैंने लोकेट किया पॉइंट A पे. जो दूसरा पार्टिकल है इसको मैंने लोकेट किया कहां पर? शाबाश, इसको मैंने लोकेट किया B पर. जो पहला पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन जो है वो है r1. जो दूसरा पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन O जो है दैट इज r2. सपोज C जो है, C इसका पोजीशन, C है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है सपोज दैट इज RCM. तो आपको ये फार्मूला पता है, जो RCM है दैट इज इक्वल टू, शाबाश, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. इसको मैं नाम रखूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम. सपोज जहां पर मैंने पार्टिकल ऑफ मास m1 लोकेट किया, सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और जिस पॉइंट पे मैंने पार्टिकल m2 लोकेट किया, सपोज उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. सपोज जो है सेंटर ऑफ मास है, इसके कोऑर्डिनेट्स है xcm, ycm. यानी मैंने बोला कि जिस पॉइंट पे मैंने पार्टिकल ऑफ मास m लोकेट रखा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1. उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? r1. तो ये r1 किसके बराबर होगा? x1 i प्लस y1 j. ठीक है ना. जिस पॉइंट पे मैंने मास m2 रखा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिए? x2 y2. ठीक है ना. तो r2 किसके बराबर होगा? शाबाश, x2 i प्लस y2 j. जिस पॉइंट पे मैंने जहां पर सेंटर ऑफ मास है, वहां पर जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है वो लिए मैंने xcm प्लस ycm. तो rcm किसके बराबर होगा? xcm i प्लस ycm j. मैं ऐसे बताऊंगा, इफ x1 y1 and x2 y2 are the coordinates of points where masses m1 and m2 are located. If x1 y1 and x2 y2 are coordinates of points where masses m1 and m2 are located, and xcm, ycm are coordinates of center of mass, then आपको पता है जो r1 होगा वो होगा x1i प्लस y1j. ठीक है, ये r1. r2 जो होगा
वो होगा x2i प्लस y2j, जैसे मैंने अभी पोजीशन वेक्टर बताया। RCM होगा बराबर, शाबाश, XCMI, शाबाश, प्लस YCMJ। मुझे यही XCM निकालना है और YCM निकालना है, क्योंकि मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। R1, R2 और RCM का वैल्यू हम सबस्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो व्हाट वी गेट, जरा बता बेटा, वी गेट RCM इज इक्वल टू, शाबाश बता बेटा, शाबाश शाबाश, M1 इंटू R1, R1 के बदले क्या लिखूंगा, शाबाश, X1I प्लस Y1J, ठीक है, प्लस M2 प्लस M2 इंटू R2 के बदले क्या लिखूंगा मैं, शाबाश, X2I प्लस Y2J डिवाइडेड बाय, शाबाश, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और इस RCM के बदले क्या लिखूंगा मैं, शाबाश, XCMI, शाबाश, XCMI प्लस YCMJ। मैंने क्या किया, R1, R2 और RCM का वैल्यू जो है, आई हैव सबस्टिट्यूटेड दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट में दिया वैल्यू, RCM के बदले क्या लिखूंगा बेटा मैं, XCMI प्लस YCMJ। R1 के बदले क्या लिखूंगा, X1I प्लस Y1J। R2 के बदले क्या लिखूंगा, X2I प्लस Y2J। मैं क्या मुझे क्या निकालना है, मुझे XCM निकालना है और YCM निकालना है, यानी मुझे निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कैसे मैं आगे जाऊंगा, कैसे मैं यहां पर आगे जाऊंगा, देखो बच्चों, M2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ये बनेगा इस तरह, XCMI प्लस YCMJ इज इक्वल टू, M1 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, शाबाश, कैसा बनेगा, M1X1I प्लस M1Y1J प्लस M2, शाबाश, M2X2I प्लस M2Y2J डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब आप I वाले पहले लिखो, उसके बाद J वाले लिखो, तो क्या बन जाएगा, XCM प्लस XCMI प्लस, शाबाश, प्लस YCMJ इज इक्वल टू, शाबाश, ये बनेगा M1X1I, शाबाश, प्लस M2X2I, शाबाश, प्लस बनेगा M1Y1J प्लस बनेगा M2Y2J डिवाइडेड बाय क्या आएगा, शाबाश, M1 प्लस M2। पहले जो दो टर्म्स है इनमें I कॉमन निकालो, दूसरे जो दो टर्म्स है उनमें J कॉमन निकालो, तो आपको क्या बनेगा, शाबाश, XCMI प्लस YCMJ इज इक्वल टू, पहले I कॉमन निकालो, आपको क्या आएगा, शाबाश, M1X1, ठीक है, प्लस, शाबाश, M2X2, तो कॉमन क्या निकालो आप, I, शाबाश, प्लस, शाबाश, प्लस क्या आएगा, शाबाश, M1Y1 प्लस M2Y2, कॉमन क्या आएगा, J, यहां I कॉमन निकाला, यहां J कॉमन निकाला, डिवाइड क्या बनेगा, शाबाश, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। बच्चों ये देखो, अगर आपको ऐसे होगा 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 5/4 6/4, यही मानो यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग देंगे हम, तो ये बनेगा XCMI प्लस YCMJ इज इक्वल टू M1X1 प्लस M2X2 इंटू I डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है, प्लस, शाबाश, प्लस क्या आएगा, शाबाश, M1Y1 प्लस M2Y2J डिवाइडेड बाय क्या आएगा, शाबाश, M1 प्लस M2। ये देखो यहां पर मैंने जो डिनोमिनेटर है, आई हैव गिवन दिस डिनोमिनेटर सेपरेटली, तो मुझे निकला XCMI प्लस YCMJ इज इक्वल टू M1X1 प्लस M2X2I डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M1Y1 प्लस M2Y2
J divided by m1 plus m2. अब मैं क्या काम करूंगा इस इक्वेशन में? I will equate coefficients of I and J. यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ I क्या है? XCM. यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ I क्या है? m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. यानी XCM किसके बराबर होगा? m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m. इक्वेट करूंगा. यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ I और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ I, इनको आपस में क्या करूंगा? इक्वेट. ठीक है ना? तो मैं लिखूंगा इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ I and J. इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ I and J we get. जब हम I और J के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे तो आपको बच्चों क्या निकलेगा? देखो क्या निकलेगा आपको. यहां देखो आपको क्या निकलेगा. जब आप कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे तो आपको क्या निकलेगा? यहां I का कोएफिशिएंट क्या है? तो आपको निकलेगा XCM इज इक्वल टू, यहां पर I का कोएफिशिएंट क्या है? शाबाश, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये निकला सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट. तो किसके बराबर है सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरिकल्स. इसी तरह जब हम J के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे, यहां क्या आएगा? YCM. तो वी गेट YCM इज इक्वल टू, शाबाश, m1 y1 शाबाश प्लस m2 y2 divided by शाबाश m1 plus m2. These were the expressions for the coordinates of center of mass of a two particle system. अगर हम 3 डायमेंशनल केस लेंगे, वहां पर z कोऑर्डिनेट भी लेना है, तो वहां पर ZCM होगा, वो किसके बराबर होगा? m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अगर हम n पार्टिकल सिस्टम लेंगे, उसमें XCM होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 प्लस डैश 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 mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश 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 टू mn. इसी तरह का YCM होगा, उसी तरह होगा ZCM. So these two, they represent the expressions for the coordinates of center of mass of a two particle system. Now let us discuss the second topic, that is motion of center of mass. We will show that if a system is isolated system, that means if no external force acts on the system, the center of mass of a system that moves with uniform velocity. हम दिखाएंगे कि अगर हमारा जो सिस्टम होगा, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, यानी अगर उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा, उस वक्त जो हमारा जो सेंटर ऑफ मास जो होगा, दैट विल कंटिन्यू टू मूव, दैट विल मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी. यानी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी वो होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लेट अस प्रूव दिस. सपोज बेटा यहां पर हमारा एक सिस्टम है. दिस सिस्टम consists of n particles having masses m1, m2, m1, m2, m3, m4 dash 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 mn. Suppose m is the total mass of the system. Suppose इस सिस्टम में ये पॉइंट जो है, suppose this is the position of center of mass. Center of mass. ठीक है ना? हम क्या कहेंगे? Let m is equal to total mass of a system. टोटल मास ऑफ ए सिस्टम. सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम का जो टोटल मास है वो है m. सपोज F जो है, F इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. पहले मैं ले लूंगा, सपोज इस सिस्टम पे मैंने क्या एक्सटर्नल फोर्स लगाया? F. सपोज F इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम. F जो है ये है एक्सटर्नल फोर्स जिसको मैंने अप्लाइड किया सिस्टम पे. F इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम. मैंने एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम का जो है टोटल मास वो है m. उस सिस्टम पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उसका नाम क्या रखा मैंने? F. सपोज बाय अप्लाइंग दिस एक्सटर्नल फोर्स F, जो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का है, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई वो है ACM. What is ACM? ACM is acceleration. Acceleration. This is acceleration produced in the center of mass of a system. चूंकि जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन.
Therefore मैंने यहां पर बोला कि अगर मैं इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करूंगा, सपोज इस फोर्स F से इस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? ACM. Now therefore as per Newton's second law of motion, as per Newton's second law of motion, as per Newton's second law of motion, जो हमारा F होगा that will be equal to m into ACM. चूंकि F जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां मास है m और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इंटू सेंटर ऑफ मास क्या है? वो है ACM. चूंकि हम एज्यूम करते हैं ये जो टोटल मास सिस्टम का है, दिस इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास. नाउ आपको पता है जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वो होता है dvcm डिवाइडेड बाय dt, फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. व्हाट इज vcm? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. देयरफॉर आपका जो दिस इक्वेशन फर्स्ट ये क्या बनेगा? शाबाश, ये बनेगा F इज इक्वल टू, शाबाश, F इज इक्वल टू m, शाबाश, dvcm डिवाइडेड बाय dt. व्हाट इज F? External force acting on the system. If the system is isolated, यानी अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हुआ, होगा, उस सूरत में उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम. देन F जो होगा वो होगा 0 के बराबर, because isolated system is that system in which no external force acts. तो हमारा F जो होगा वो 0 होगा. तो इक्वेशन सेकंड जो है होगी वो क्या बनेगी उस सूरत में? F क्या लिया मैंने? 0. तो इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी? बोलो क्या बनेगी? ये बनेगी m dvcm डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 0. ठीक है ना? क्योंकि मैंने सिस्टम आइसोलेटेड लिया. आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है. तो आपका F जो होगा वो होगा 0. तो उस सूरत में आपका इक्वेशन सेकंड बनेगा m dvcm डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 0. बट m जो होता है दिस इज नॉट इक्वल टू 0. But m is not equal to 0 because mass of system cannot be equal to 0. Therefore आपको क्या निकला? dvcm divided by dt is equal to 0. यानी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या निकला आपको? 0. जब किसी चीज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होगा उसका मतलब है वो चीज क्या होता है? कांस्टेंट. तो दिस एम्प्लाइज vcm is equal to कांस्टेंट. यानी यहां पर क्या आपने देखा? यहां पर देखा कि अगर एक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तो उस सूरत में उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रूफ. द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस, we will show that in the absence of external force, that means अगर हमारा जो सिस्टम होगा वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, उस वक्त जो सेंटर ऑफ मास होता है उस सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी कांस्टेंट होगा. मैंने अभी आपको प्रूव किया कि अगर एक सिस्टम पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उस सूरत में वो सिस्टम जो है उसका जो सेंटर ऑफ मास जो है दैट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. Now let us also prove that in the absence of external force the linear momentum of center of mass remains conserved, remains constant. See how we'll go for showing this question. Suppose यहां पर हमारे पास एक n particle system है. Suppose we have n particle system which consists of n particles having masses m1, m2, m3, m4 dash 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 mn. Suppose the position vectors of these particles with respect to origin are r1, r2, r3, r4 dash 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 rn. मैंने एक n particle system लिया which consists of n particles having masses m1, m2, m3, m4, m5 dash 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 mm. Suppose the position vectors of these particles with respect to origin are r1, r2, r3, r4 dash 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 rm.
सपोज यहां पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं P नाम रखूंगा. सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ मास, हैविंग पोजीशन वेक्टर RCM. पॉइंट P जो है वो मैंने सिस्टम में एक पॉइंट लिया, मैंने बोला जो ये पॉइंट P है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सपोज इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने लिया RCM. Therefore, as per the definition of center of mass, जो है RCM होगा, this will be equal to M1R1 plus M2R2 plus शाबाश M3R3 plus dash 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 plus MNRN. ठीक है, ठीक है, divided by शाबाश divided by M1 plus M2 plus M3 plus dash 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 MN. तो RCM जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो इसके बराबर है M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस डैश 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 MNRN डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डैश 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 MN. मगर जो ये M1 M2 M3 MN है ये है टोटल मास ऑफ द सिस्टम. बट M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डैश 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 प्लस Mn जो है ये है बराबर M. व्हाट इज M? टोटल मास ऑफ सिस्टम. तब क्या बनेगी ये इक्वेशन? शाबाश, ये बनेगा RCM इज इक्वल टू शाबाश M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस डैश 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 प्लस MNRN डिवाइडेड बाय M. चूंकि कैपिटल M जो है वो है टोटल मास ऑफ सिस्टम, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये क्या बनेगा शाबाश? M इंटू RCM, M इंटू RCM, ठीक है, इज इक्वल टू शाबाश M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस डैश 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 MNRN. सिंपली मैंने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया. What is M? Total mass of the system. Now let us differentiate this with respect to time. चूंकि मुझे लीनियर मोमेंटम निकालना है, लीनियर मोमेंटम के लिए मुझे वेलोसिटी की जरूरत है, लिहाजा मैं इस RCM को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो लेट मी डिफरेंशिएट दिस होल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये d by dt ऑफ MRCM, ठीक है, इज इक्वल टू d by dt ऑफ शाबाश M1R1, ठीक है, प्लस d by dt ऑफ शाबाश M2R2 शाबाश प्लस d by dt ऑफ क्या है शाबाश शाबाश M3R3 प्लस डैश 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 d by dt ऑफ शाबाश MNRN, ठीक है. हर एक टर्म को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हर एक डिफरेंशियल में जो m होगा वो कांस्टेंट होगा, वो डिफरेंशियल से बाहर आएगा. तो हर एक टर्म में जो m होगा दैट विल कम आउट ऑफ द डिफरेंशियल. तो क्या बनेगा मुझे फिर ये शाबाश, ये दिखा भाई क्या बनेगा. ये जब मैं इस m को बाहर लूंगा तो मुझे क्या बनेगा, यहां पर m को बाहर ले लो, ठीक है. ये क्या बनेगा बच्चों? मुझे ये बनेगा m drCM divided by dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ RCM with respect to time equal to M1 dr1 divided by dt plus शाबाश M2 dr2 divided by dt शाबाश, आगे चलो शाबाश, प्लस M3 dr3 divided by dt प्लस डैश 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 प्लस Mn शाबाश drn divided by dt. Now drCM divided by dt हो गया VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ये बनेगा m VCM इज इक्वल टू ये बनेगा m1 dr1 डिवाइड बाय dt हो गया v1, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1. दिस इज m1 v1 प्लस dr2 डिवाइड बाय dt हो गया v2, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2. तो ये हो गया m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डैश 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 प्लस mn vn. ठीक है, ठीक है. मगर बट जो m vcm होगा ये है मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास. बट m
इंटू VCM होगा बराबर PCM, यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो व्हाट इज PCM? शाबाश, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बनेगी? आप शाबाश, m VCM के बदले क्या लिखूंगा मैं? PCM, ठीक है ना. दिस विल बी इक्वल टू m1 V1 प्लस m2 V2 प्लस m3 V3 प्लस डैश 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 mn Vn. नाउ सपोज जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम पे मैं F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा. क्या करूंगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई. F is equal to external force acting on the system, then as per Newton's second law of motion, as per Newton's second law of motion, तो हमारा जो F होगा, this will be equal to dPCM divided by dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. F होगा dPCM divided by dt, ठीक है ना. नाउ अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो F क्या होगा? 0. if the system is isolated, अगर हमारा सिस्टम जो होगा वो आइसोलेटेड होगा, ठीक है ना. आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा. देन आपका जो F होगा that will be 0. Therefore ये इक्वेशन क्या बनेगी? Therefore this equation, above equation becomes क्या बनेगा? शाबाश, dPCM divided by dt is equal to 0. When the derivative of linear momentum is 0, it means that linear momentum is constant. This implies जो आपका PCM होगा वो होगा कांस्टेंट. इसका मतलब है अगर एक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा, उस सूरत में जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा कंजर्व. It means that the linear momentum of a center of mass remains conserved if the system is isolated. That means if no external force acts on the system. This completes motion of center of mass.